Hello friends, my name is Dr. Pratima Sadangi, Assistant Professor in the field of Public Policy and Management. Today we are going to discuss on the Panchayat Raj institution and the system of three-tier system which is related to the structure of Panchayat Raj institution in Odisha. As we have already discussed on the the local self-government, and regarding local self-government we discussed about the different historical developmental period in the Indian history or Indian system to have a local self-government or empowered local self-government. Today we are going to discuss about the structure of Panchayat Raj institution, and as we discussed, after like say 45 years of independence or different expert views and different expert views on local self-government to empower the local self-government, including our father of nation Gandhiji's view on Gram Swaraj. After the 73rd amendment, we have the structure or empowered local self-government system in India, because expert viewed that it is required to empower the Gram Panchayat or the grassroots level democracy or the level of democracy from the grassroots level to have a proper good governance system in India. So, based upon that, it was realized by different experts and the constitutional makers as well as other analysts to empower the Gram Panchayat or to start governance from the grassroots level of democratic system in India. And based upon that, we have 73rd amendment, and the 73rd amendment in 1992, as we discussed on that, and it was really implemented from 1993, and it was also like realized by the state government as well as the central government to have a empowered or powerful local self government to look after the different members as well as the developmental programs and policies plans at the grassroots level. When we discussed on that, based upon that system, today we are going to discuss on what is the structure of three-tier system in Odisha. So, as we discussed, central government, then the state government, then the different government at the local self-government. And in local self-government, we have rural and urban local self-government. In rural and urban local self-government, here we are going to discuss on the rural local self-government or the Panchayat Raj institution in Odisha. And based upon that, the three-tier system in Odisha, it is Panchayat Raj institution. Then the Panchayat Raj institution categorized into three levels. That is, one is village level, then the block level and the district level. The village level panchayat is known as the Gram Panchayat, or village level institutions at the local government is known as the Gram Panchayat. Then the block level panchayat or block level institutions in Panchayat Raj institution is known as Panchayat Samiti. Then district level institutions in Panchayat Raj institution is known as the Jilla Parishad. So, we will start with the Panchayat Raj institution in Odisha, and in Panchayat Raj institution in Odisha, we will start the concept of Gram Panchayat. What is Gram Panchayat? Here we are going to discuss on the structure of Panchayat Raj institution in Odisha, then regarding the structure of Panchayat Raj institution, what are the different structure, because if it is required to know that all the state they do not have same structure of Panchayat Raj institution. Why? Because Panchayat Raj institution is not implemented in Meghalaya, Mizoram and Nagaland till date. And it is a restriction, it is based upon totally, as we have already discussed, it is totally based upon the population, and it is also based upon the Balwant Rai Mehta committee on three-tier system of Panchayat Raj institutions. So, till date also these three Meghalaya,
Mizoram and Nagaland, they do not have Panchayat Raj institutions. And here the role of State Finance Commission is important. State Finance Commission ना बहुत बड़ा important role और function रही कहीं ना समान तांकर रोल रही टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन केमती हम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट आउ जो होल आमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रोल फंक्शंस और पावर्स ताऊपर आमर डिस्कशन करा जायछि कोथरे ना आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द स्ट्रक्चर द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पंचायत आम जिते ओडिशा रे रोचे आमर राज्यर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बा आमर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कौन रही आमको जानापी पड़ो तो जो जानापी पड़ो आमको जाना कहीं दरकार तो आम हुए तो कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस रे काम करिले हो बा आज सर्वेंट फॉर द पब्लिक पॉलिटिकल लीडर हो जो रोल रे भी जे काम करिया पई चाहउचंती तांको जदी से स्ट्रक्चर केमते काम करूची तार गवर्नेंस सिस्टम को भलिया रहिची जदी से राज्य जदी जानि न परिबा ताले हमको जानिबा को बहुत डिफिकल्ट हबो जे हमर स्टेट गवर्नमेंट केमती चलीची जिते आम स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट उपर आम डिस्कशन करचे डेफिनेटली हमको जानापी पड़ो जे आमर स्ट्रक्चर कौन रही तेणु जब लोअर लेवल जो रही आम जमी देखिले सेंट्रल गवर्नमेंट थिला गोटे थिला आमर सेंट्रल गवर्नमेंट तापरे स्टेट तापरे आसला कौन ना डिस्ट्रिक्ट तो सेंट्रल रोची आम सेंट्रल गवर्नमेंट रोची आमर इंडिया को जदि आम सेंट्रल गवर्नमेंट बोली धरबा ताले एटी 29 स्टेट्स रहिला एटी रहिला इंडिया as central government then 29 states रहिला categorization हैला then 29 state रो each state they have several districts depending on the population depending on the requirement of the concerned state government or for the smooth functioning of administration or to achieve good governance at the state level as a whole in India, it was realized to divide the states into different districts. The district जो रही सबू स्टेट से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सामान नुहे इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट और द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ दैट कंसर्न स्टेट से अनुसार 29टा स्टेट रही देन डिस्ट्रिक्ट सी जो प्रत्येक स्टेट विभिन्न नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रही तो जो डिस्ट्रिक्ट रही सबू डिस्ट्रिक्ट को एगेन कौन कराई डिवाइड कराई ब्लॉक again that district is divided into blocks तो जो ब्लॉक जो कहूँ आम कौन डिस्ट्रिक्ट्स रहा देन तो कंट्री हूँ आमर गोटे इंडिया हूँ आमर गोटे कंट्री से इंडिया जो कंट्री टी आमर डिवाइड होती कौन ना 29टा स्टेट डिवाइड होती यूनियन टेरिटरीज डिवाइड होती तो जो 29टा स्टेट रही 29टा स्टेट तांकर निजर स्टेट गवर्नमेंट रही क्लियर देन कमिंग टू द स्टेट फॉर द स्मूथ रनिंग or governance of that particular state, the state has divided into n number of district. जमती आमर डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा रे जमती आमर 30टा डिस्ट्रिक्ट रही तेणु तार आगु 30टा डिस्ट्रिक्ट नाला 13 डिस्ट्रिक्ट थिला धीरे धीरे बढ़ी 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 एवं 30टा डिस्ट्रिक्ट रही तेणु कहीं जिते कैटेगोराइजेशन हम तेणु से इजी हम से सिस्टम को रन करने एडमिनिस्ट्रेशन को लोकों पाखे प्लान्स और पॉलिसी को लोकों पाखे पहुँचापी इजी हम 1-to-1 अप्रोच हो पार बोली कैटेगोराइजेशन कराई it is based upon the analyst views as well as the expert views then coming to district को पुणी जब कैटेगराइज कराई कौन कराई डिस्ट्रिक्ट मान को each district को मध्य कैटेगराइज कराई ब्लॉक रे जो आम जोटा को आम पंचायत समिति बोली कहूँ ब्लॉक रे डिवाइड कराई तेणु ब्लॉक रो डेवलपमेंट तापाई स्वतंत्र ऑफिसर्स रही इलेक्टेड मेंबर रही भी आम डिस्कशन करवा ताहले एटी कौन करागला जितेबले एटी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आम कथा कहूँ सबू जितेबले आमर स्टेट गवर्नमेंट को आसीगला तो जिते 73rd अमेंडमेंट कहला जे नाई आमर 3 टायर सिस्टम रहिबो 3 टायर इंस्टीट्यूशंस रहिबो बा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रहिबो ताले पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रहिबो कहले ताहले कौन हैला ना ईच स्टेट रो जो आमर कैटेगोराइजेशन जो हेची जोटा कि गोटे स्टेट रु जदि गोटे स्टेट रो आम पंचायत देखा सेटा कौन है गोटे ईच स्टेट रो
ताले सबु स्टेट रे नाही मु जेमति कहितली जे हमर ए पर्यंत मेघालय आ मिजोरम नागालैंड रे नाही ए पर्यंत तेणु एठी कोन कराई छि तो डिस्ट्रिक्ट रही छि जो प्रति डिस्ट्रिक्ट लेवल ले करा छी ताको आमे जिला परिषद बोली कहू छी देन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट को पुणी जो कैटेगराइज कराई छि ब्लॉक रे ब्लॉक लेवल ले पंचायत समिति रही छि आ पुणी ब्लॉक रो कोन रही छि बा ग्राम बा विलेज जोटा आमे ग्राम बा विलेज बोली कहू छी और विलेज तो जो विलेज लेवल जोटा कराई सेटा कौन है आमर यहाँ हूँ विलेज ग्राम पंचायत बोली कहूँ बा विलेज पंचायत बोली कहि परिबा तेणु जिते बड़े आम सेंटर गोटे कंट्री डिवाइड है स्टेट्स को स्टेट डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है ब्लॉक्स को आ ब्लॉक्स डिवाइड है ग्राम बा विलेज को तेणु से अनुसार आमर कौन रहा ना आमर जो पंचायत इंस्टीट्यूशन रहा ग्राम पंचायत पंचायत समिति आउ जिला परिषद लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्राम पंचायत फर्स्ट आम डिस्कशन करवा ग्राम पंचायत जदि आम देखा ये कौन ना ग्राम पंचायत जो रही आमर ओडिशार जो स्ट्रक्चर रे आमर ग्राम पंचायत रही तार कौन रही तार कंपोजिशन केमती कहा कहा को लेकिन ग्राम पंचायत गठित रही ग्राम पंचायत रे किए काम करती से इलेक्टेड मेंबर अच्छी कि नहीं तांकर इलेक्शन केमिति हुए तांकर क्वालिफिकेशंस आउ डिस्क्वालिफिकेशन बा रिमूवाल कौन रही टर्म कौन रही आम विस्तृत भाव आज आलोचना करवा तेल रहा आम ग्राम पंचायत जोटा कि आम कहे जोटा कि जीपी बोली आम सर्ट फॉर्म में ताको कहा जाउची जे ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत होची सबुटू लोएस्ट यूनिट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जदि आम जमी देखिले जो आम जो स्ट्रक्चर करते सेंटर स्टेट आउ डिस्ट्रिक्ट तापर रहा विलेज समिति आउ रहा आमर कौन रहा ना ग्राम पंचायत तेणु ग्राम पंचायत हूँ आमर लोएस्ट यूनिट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर जदि तुमको क्वेश्चन पड़ो से डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन ओडिशा बा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन ए पर्टिकुलर स्टेट हैविंग पीआरआई इंस्टीट्यूशंस ताले पीआरआई इंस्टीट्यूशंस रे फर्स्ट रहा कौन ना आमर स्टेट गवर्नमेंट रही जो पीआरआई इंस्टीट्यूशंस से रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल देन द ब्लॉक लेवल देन द विलेज लेवल सो विलेज लेवल हूँ यहाँ हूँ आमर सबुठू लोएस्ट यूनिट पीआरआईज तो लोएस्ट यूनिट बोली आमर धरा जाइए तो सबुठू लोअर लेवल लोएस्ट लेवल यूनिट बोली पीआरआईज बोली आमर रखा जाइए धरा जाइए आउ बॉटम लेवल जो किंतु एटा इंपोर्टेंस यार कौन अच्छी बेसिक आउ प्राइमरी बेस ऑफ पीआरआई इंस्टीट्यूशंस जदि आम गोटे विलेज डेवलपमेंट करिपारिबा नाही ताले आम ब्लॉक डेवलपमेंट किंबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट किंबा स्टेट डेवलपमेंट हो पारिबनी तेणु एटा सब गोटे बेसिक रिक्वायरमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट तेणु जिते गोटे विलेज गोटे ग्रामर डेवलपमेंट हम तो डेफिनेटली से पंचायत डेवलपमेंट हम आउ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हम एंड एज ए होल स्टेट डेवलपमेंट हम तेणु जो आम ग्राम पंचायत देखा ताले ग्राम पंचायत कंपोजिशन कौन रही जोटा कि जदि आम विलेज लेवल जो पंचायत को ताकू आम ग्राम पंचायत बा विलेज पंचायत कहूचे तांकर कौन रही इट इज बेस्ड अपन द ग्राम पंचायत केतेटा रहिबो कौन गोटे डिस्ट्रिक्ट रे केतेटा ब्लॉक रहिबो आ से ब्लॉक अंडर रे केतेटा ग्राम पंचायत हो पारिबो सेटा डिपेंड करूची तार पॉपुलेशन उपरे आ से जो पॉपुलेशन उपरे जते डिपेंड करची बेसिकली गोटे ग्राम पंचायत रो 2000 रु 6000 भितरे पॉपुलेशन रहिथिबा दरकार 2000 रु 6000 पॉपुलेशन रही दरकार तो मिनिमम 2000 थिबा दरकार आउ मैक्सिमम होची 6000 थिले से माने सेटाको गोटे ग्राम पंचायत बोली कहा जिवो बा डिफाइन करा जिवो तेणु जिते कंपोजिशन रोचे तार कौन रोचे इलेक्टेड मेंबर मध्य रोचंदी सेतरे इलेक्टेड मेंबर जो रोचंदी सेतरे किए रोचंदी ना सरपंच नायब सरपंच आउ वार्ड मेंबर आउ सेक्रेटरी से होती इलेक्टेड मेंबर जो मैंने सरपंच जमती आम शुणुचे सरपंच अच्छा गाँव सरपंच अच्छा नायब सरपंच अच्छा तेणु आज आम डिस्कसन करवा से सरपंच केमती इलेक्टेड हुंती कौन कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार प्लस सरपंच काम कौन थाए कौन कौन क्षमता बा पावर दि जाइए जोटा कि सी जो आम डिसीजन तो आमको ये क्वेश्चन आसो जे ये जो सिस्टम तैयारी प्रकृत में जो मुख्य रोल कौन रही मुख्य रोल रही टू इन्वॉल्व द मेंबर्स एज वेल एज द पब्लिक फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आम डिस्कशन करते जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कसन करते जो आम ये डिस्कसन करते डेमोक्रेसी जिते आम टॉप रु खाली देखा ताहले गोटे कंट्री प्रॉपर डेमोक्रेसी हो पार ना
बेस्ड अपन गवर्नेंस सिस्टम यदि गवर्नेंस सिस्टम को बेटर करने पड़ो ताहले इट इज रिक्वायर्ड टू एम्पावर द पीपल फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल जो डेमोक्रेटिक को डिसेंट्रलाइज करके लोक मानू बॉटम लेवल ले पावर दिगला ताहले तांको इन्वॉल्वमेंट पई आह्वान करागला बा तांको से क्षमता मध्य दिगला थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और थ्रू अदर सोर्स ताहले कौन हम से गोटे इन्वॉल्वमेंट रहिबो इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री और द स्टेट ताले सेठी कौन है जदि आम डेमोक्रेटिक जदि तार डेफिनेशन को जो एनालिसिस करते जानी जे डेमोक्रेटिक सिस्टम रे लोक मानकर इन्वॉल्वमेंट सबुठु मुख्य रही थाए आउ सेमानंकर जदि इन्वॉल्वमेंट न रहिबो ताहले देशर शासन को गणतांत्रिक बोली आमे कहि परिबा नाही तेणु जदि आमे देशर शासन रे सबु लोक माननकु इन्वॉल्व करि परिबा ताहले सेथिरे कोन हबो सेथिरे पंचायत राज रो इंस्टीट्यूशंस रो रोल बा मुख्य भूमिका रहिछि तेणु जिते पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो मुख्य भूमिका रहिछि जिते आमे गोटे स्टेट को डिवाइड करते डिस्ट्रिक्ट आउ ब्लॉक आउ विलेज रे तेणु विलेज रो जो पंचायत जो इंस्टीट्यूशंस रहउछि ताकू आमे ग्राम पंचायत बोली कहउछि तेणु जेकोसी विलेज रो जदि पॉपुलेशन 2000 टू 6000 हबो ताकू आमे ग्राम पंचायत रो आख्या देई परिबा तेणु ये जो कंपोजिशन रोचे ताले कंपोजिशन किए रोचंती आमर सरपंच सरपंच नायब सरपंच देन वार्ड मेंबर्स देन सेक्रेटरी तेणु यार जो कंपोजिशन जदि आम देखा ताले सरपंच नायब सरपंच एटी रहा सरपंच नायब सरपंच वार्ड मेंबर आउ सेक्रेटरी तेणु कंपोजिशन माने काहाकू नेकी गठन होता है आमर ग्राम पंचायत तेणु ग्राम पंचायत जो गठन होता है ताले सेठी कौन है गोटे ग्राम पंचायत ओडिशा रे आमर टार्गेट धराई 2000 रू 6000 पॉपुलेशन थिबे आउ सेटा को आमे ग्राम पंचायत रो डेफिनेशन दे परिबा आउ से इस ग्राम पंचायत रो वार्ड्स मध्य रही प्रत्येकटी ग्राम पंचायत जो रही ओडिशा रे तांकर वार्ड्स रही डिफरेंट वार्ड्स तो जो वार्ड्स रही गोटे वार्ड रो जड़े मेंबर को से इलेक्शन करथांती और इलेक्टेड करथांती से तांको वार्ड मेंबर बोली कहा जाए तो ईच वार्ड रो मेंबर को जब कह वार्ड मेंबर क्या कहबा आमे ईच वार्ड रो जो मेंबर इलेक्टेड होती लोक मानक द्वारा तांको आमे वार्ड मेंबर बोली कह तो जेतोटी गोटे विलेज रो जेतोटी वार्ड थाए सेते अनुसार सेती जण वार्ड मेंबर मध्य थांती तो जेतेबेले इलेक्शन ताले आमे कहबा जे इलेक्शन तार केमती हुए एमान को केमती इलेक्शन करा जाए जे सरपंच अंकर इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन वार्ड मेंबर मानकर इलेक्शन मध्य डायरेक्ट इलेक्शन होता है तेणु से प्रार्थीपत्र से दाखल करथांती जेमती साधारणतः आमर गणतांत्रिक व्यवस्था रे होता है प्रार्थीपत्र नॉमिनेशन फॉर्म दाखल करथांती आउ से डायरेक्ट इलेक्शन होता है बेस्ड अपन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज मु भाबुची तुम भूली नथिबो बोधे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज माने जो माने 18 वर्ष बा 18 वर्ष रु अधिक ऊर्ध्व होइतिबो तांकर बयस से माने सेतरे भाग नै पारिबे आउ तांकर जो पड़ोशी मानक भितर गोटे गाँव रे जो पड़ोशी मानक भितर मध्य आमे आमर मेंबर को बाछि पारिबा बा इलेक्ट करि पारिबा ताकू कहा जिबा हमर डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज बोली कहा जाए तेणु सरपंच आउ वार्ड मेंबर माने सेथरु ही इलेक्शन हेथांती तो सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड बाय वोटर्स ऑफ द पंचायत और द ग्राम देन नायब किंतु सेक्रेटरी जो माने आमे जदि वार्ड मेंबर मध्य से डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर पंचायत जोटा ग्राम पंचायत रो किंतु आमे जदि नायब सरपंच ताल सरपंच आउ जदि वार्ड मेंबर हेई पारले ताल ए जो वार्ड मेंबर्स रहिले तांको भितर जण को बछा जाए नायब सरपंच कौन पाई करा जाए आम डिस्कसन करवा सरपंच और नायब सरपंच रो पोस्ट कौन पाई दरकार है और कहीं तांकर कौन रोल भूमिका रही तेणु वार्ड मेंबर मध्यरु नायब सरपंच जन को बचा जाए कौ मैंने बाछे से वार्ड मेंबर माने ही बाछे जमती सपोज जमती वार्ड मेंबर माने 20 जन इलेक्टेड होकर आसिले ताले से 20 जन मध्यरु जन को बछा हबो नायब सरपंच बोली तेणु कौ मैंने बाछंती जे से 20 जन भितर ही समस्तंकर गोटे मत निया जाय थाए आ सेथिरे से माने बाछंती काहाकू ना तांकर के नायब सरपंच हेबे द नायब सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वार्ड मेंबर्स फ्रॉम अमंग द वार्ड मेंबर्स से इलेक्टेड होइथांती बाय द वार्ड मेंबर्स फ्रॉम अमंग द वार्ड मेंबर्स तेणु से वार्ड मेंबर माने तांको मानक मध्यरु जन को इलेक्ट करथांती आज नायब सरपंच
तांकर कौन रोल रही आम तापर पावर्स ऑफ फंक्शन डिस्कशन करवा से आम जापर बट सेक्रेटरी सेक्रेटरी रोल कौन सेक्रेटरी इज अ जो सैलरीड गवर्नमेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट जोटा कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रोल रही थाए जे सैलरीड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट बोली रही थाए ये कहार रहा लोक मान रिप्रेजेंटेटिव रहिले सरपंच आउ नायब सरपंच आउ वार्ड मेंबर तापर रहिले कौन किए ना सेक्रेटरी मध्य रहिले जे से ग्राम पंचायत काम करेंगे आउ सी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट रही था ताले आम देखा जदि सरपंच आम ग्राम सभा सपोज आमर मन है जे टू सर्व द सोसाइटी और टू सर्व आवर विलेज एज ए सोशल वर्कर बा पब्लिक सर्वेंट बोली आम भाविबा गोटे सेवक बोली भाविबा ताले व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम टू फाइल ए नॉमिनेशन फॉर्म एज ए सरपंच सरपंच क्वालिफिकेशंस कौन रही पारिबो सरपंच क्वालिफिकेशन रही कौन ना सरपंच जो 21 एज जदि आम देखा मिनिमम बयस 21 इयर्स होता दरकार तांकर ना भोटर लिस्ट रही दरकार जदि सपोज जड़े चाहिए मु सरपंच इलेक्शन में भाग नेबी सरपंच होगापी कि ना भोटर लिस्ट नथिबो ताले कौन हम से हो पारे नहीं ना से विलेज जो भोटर लिस्ट थी से भोटर लिस्ट ना थिबा दरकार तापरे से नॉर्मल पर्सन आम युवाक बहुत डिस्कशन करें जो लोकसभा मेंबर बा राज्यसभा मेंबर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर बा आमर प्राइम मिनिस्टर हूँ बा चीफ मिनिस्टर हो जो मेंबरशिप उपरे क्वालिफिकेशन उपरे आम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन उपरे डिस्कशन करते से आम डिस्कशन करते जे तांकर कौन कौन रही दरकार तेणु जो भोटर लिस्ट ना रही खाली भोटर लिस्ट ना रही हेनी से नॉर्मल पर्सन जड़े होते कहीं नॉर्मल पर्सन होते जदि जनकर नॉर्मल पर्सन नथिबो माने तांको जदि मस्तिष्क नॉर्मल नथिबो ताले कोन हो से डिसीजन नहीं पारिबे नाही बा उचित डिसीजन नहीं पारिबे नाही तो सेति पई से नॉर्मल पर्सन हेतबा दरकार आ बैंकरप्टी हेई नथिबे तांको नारे कोनोसी प्रकार केस हेई नथिबो जोटा कि बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज रे कोनोसी केस फाइल तांको नारे चालू नथिबो कोनोसी कोर्ट रे तन से भले जण मेंबर हेइथिबे प्लस तांकर जो वार्ड मेंबर हिसाब से ना नथिबो से माने कोनोसी वार्ड मेंबर ना हेई नथिबे से सरपंच डायरेक्टली सरपंच प्रार्थीपत्र दाखल करती आ लोक मैंने सरपंच हिसाब से ही इलेक्ट करथांती तेणु से वार्ड मेंबर हेई नथिबे आउ तांकर से कोनोसी प्रकार एटा गोटे साधारण जिनस जी भी पॉलिटिकल लीडर हेइचंती बा पॉलिटिकल स्पीयर जो माने काम करचंती आउ इलेक्टेड हेकी लोक मानक द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड हेकी काम करिया पई चाहंती बा समाज को सेवा देबा पई चाहंती से माने कोनोसी प्रकार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रो कोनोसी पोजीशन को होल्ड करि नथिबे तेणु से माने गवर्नमेंट रो कोनोसी ऑफिस रे कोनोसी पोजीशन रे नथिबे बा कोनोसी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस रे चाकरी करू नथिबे आ गोटे रहिला कोन जेमती गवर्नमेंट रो अनुदान प्राप्त स्कूल रे मध्य शिक्षकता करू नथिबे सो ए सब जिंस रहिला मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन टू फाइल अ नॉमिनेशन फॉर्म एज सरपंच तेणु ये क्वालिफिकेशन थिले ही जन को सरपंचर प्रार्थीपत्र दाखल करिवार अधिकार रही से वेरिफिकेशन करा जाए जितेबाला से सरपंच पाई नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करथांती तेणु जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन रही ताको वेरिफिकेशन करा जाए जे यांकर ए क्वालिफिकेशंस रही कि नहीं जोटा कि आमर मिनिमम क्वालिफिकेशन तापर आम जब देखा तांकर जो क्वालिफिकेशन पर कौन रहा ना टर्म तांकर टेन्यूअर कौन रहिबो तेणु जो क्वालिफिकेशन रही क्वालिफिकेशन ऑफ सरपंच पर टेन्यूअर हूँ 5 वर्ष 5 वर्ष हूँ मिनिमम इलेक्शन पर से 5 वर्ष रही पारे क्षमतार से पोजिशन रही पारे कार्यकाल हूँ 5 वर्ष किंतु 5 वर्ष जो रही अच्छी सेटा पूर्वर रिमूवाल रिमूवाल केमती हो पार जोटा कि रिमूवाल आम डिस्कसन करते अन्य पोजिशन उपर जो आम सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उपरे विभिन्न पोस्ट उपरे आम पोजिशन उपरे डिस्कसन करते एठी भी रिमूवाल कौन रही जदि कौन अनास्था प्रस्ताव आसीबो बाय वार्ड मेंबर्स एगेंस्ट सरपंच जदि वार्ड मेंबर्स माने कौन अनास्था प्रस्ताव आणिबे एगेंस्ट द सरपंच आउ विथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर जितकी जन वार्ड मेंबर थिबे तांकर 2/3 मेजोरिटी रे से अनास्था प्रस्तावटी आसीथिबो आउ जितेबेले से जो प्रस्तावटी आसिला से आधारटी जदि समस्त समर्थन में पास हो गला ताहले सरपंच को 5 वर्षर जो टर्म रही पूर्वर रिमूवाल करा जाई पारिबो बा पदच्युति होता है किंतु एथिरे गोटे टेक्निकल पॉइंट रही कौन सपोज से जो 2/3 मेजोरिटीटा पास हैला नाही
जदि सेटा से जो अनास्था प्रस्तावटी बा से मोशनटी पास हो पारा ना जदि एटा रिजेक्ट हो गला बा नाकच हो गला जोटा आम कहे रिजेक्ट हो गला जो नाकच हो गला ताहले अनदर 2 इयर्स नेक्स्ट 2 इयर्स भितर से माने आउ कौन प्रकार अनास्था प्रस्ताव आनी पारिबे नाही। नंबर 1 जदि सेटा जदि नाकच हो गला ताले अनदर 2 इयर्स भितर से माने कौन हो पारिबो जे से माने कौन प्रकार आनी पारिबे नाही सॉरी अनदर 1 इयर पर्यंत आनी पारिबे नाही। प्रथम होची कौन रिमूवल हो पारिबो 5 वर्ष पूर्व हाँ हो पारिबो केमती हो पारिबो मोशन बा अनास्था प्रस्ताव बाय वार्ड मेंबर्स अगेंस्ट द सरपंच विथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर नंबर 1। तापरे जदि एक्सेप्टेड हेलानी केबे एक्सेप्टेड प्रथमे हेई न थाए अनास्था प्रस्ताव सपोज 2015 गोटे इलेक्शन होती 2017 पर्यंत कौन प्रकार अनास्था प्रस्ताव एक्सेप्टेड हो न थाए 2 वर्ष पर्यंत सेटा टेक्निकलिटी रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ सरपंच 2015 जदि इलेक्टेड होकि किए से सरपंच होकि जदि निर्वाचित होकि आसचंती ताहले 17 पर्यंत कौन वार्ड मेंबर बा 2/3 मेजोरिटी आनिले मध्य सेटा अणा जाई पारिबो नाही 2 वर्ष पर्यंत 17 पर्यंत आनी परिबेनी 17 पर सपोज इफ एटा एग्जांपल दोची इफ 17 पर जे से माने आनिले ताहले जदि से अनास्था प्रस्तावटी नाकच हो गला बा रिजेक्टेड हो गला ताले अनदर 1 इयर पर्यंत कौन अनास्था प्रस्ताव से पुणी आनी पारिबे नाही। ताहले कौन है प्रथमे जदि सपोज एमती एबे 2020 रे जदि आमे इलेक्शन हबो इन 2020 रे सपोज इलेक्शन है कौन सरपंच कर आ से इलेक्टेड हो गले ताले 22 पर्यंत से कौन प्रकार 2 वर्ष पर्यंत अणा जाई पारिबो नाही अनास्था प्रस्ताव। तापरे जदि 2 वर्ष पर वार्ड मेंबर माने कौन अनास्था प्रस्ताव आनिले एगेंस्ट द सरपंच ताहले जदि से प्रस्तावटी नाकच हो गला बा रिजेक्ट हो गला ताले एगेन अनदर 1 इयर पर्यंत कौन प्रस्ताव से माने दे पारिबे नाही। तेणु ए गुड़िक रहा टू सेफगार्ड द पोजिशन ऑफ सरपंच एंड ऑल्सो टू अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इन इलेक्शन कौन प्रकार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बा कौन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आमर गवर्नमेंट न हो बोली ए सब टेक्निकालिटी रही थाए जोटा कि आम मन रखापी पड़ो जे 2 वर्ष पर्यंत इलेक्शन 2 वर्ष पर्यंत बा इलेक्टेड मेंबर कर जो इलेक्शन हो गला तापर 2 वर्ष पर्यंत अनास्था प्रस्ताव आनी पारिबे नाही जदि जदि 2 वर्ष पर आनिले आउ सेटा जदि एक्सेप्टेड हो गला ताले तांकर पदच्युति घटिबो जदि एक्सेप्टेड न होला नाकच हो गला बा रिजेक्ट हो गला ताहले सेतेबेले कोन होबा अनदर 1 इयर पर्यंत से माने कोनोसी अनास्था प्रस्ताव आनी पारिबे नाही कि ना वार्ड मेंबर माने अगेंस्ट द सरपंच दैट भाबुची एटा क्लियर हो जाइथिबो। देन कमिंग टू द जदि आम स्ट्रक्चर कौन सरपंच केमती आसी पारिबे सरपंच क्वालिफिकेशंस कौन रहा आउ एठी आम कही रखा जे नायब सरपंच जो इलेक्टेड होती बाय वार्ड मेंबर्स फ्रॉम अमंग द वार्ड मेंबर्स तांकर रोल रोची जे जितेबेले सरपंच को पोस्ट खाली थाए किंबा सरपंच को एब्सेंट रे तेणु से टाइम रे नायब सरपंच ही काम करथांती किंबा सरपंच जदि किछि दिन पाई छुट्रे जाइचंती तांकर निर्देश क्रमे मध्य से कोनोसी प्रकार दायित्व मध्य तुले थांती तेणु नायब सरपंच कर दरकार एथिपई रही जे सरपंच जदि पोस्ट वैकेंट रहिला किंबा तांकर किछि अनिश्चित काल पर्यंत से एब्सेंट रहिले बा से निर्देश देले जे एक कामटी आपण करबा दरकार बोली ताले नायब सरपंच कौन करथांती तांकर पोस्ट बा सी पोजीशन जे थांती नायब सरपंच से कामटी करिथांती। तो ये थिला रिगार्डिंग कंपोजिशन एंड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स as well as the removal procedures and the tenure. Then we are going to discuss about the powers and function of ग्राम पंचायत। जदि आम ग्राम पंचायत पावर्स फंक्शन कौन रही जानी नथिबा ताले आम बुझीपारानी सरपंच नायब सरपंच आ वार्ड मेंबर कर रोल कौन रही ताले जिते आम देखा कौन रोची ना जिते आम सरपंच आ नायब सरपंच कौन रही रोल आ ग्राम पंच आज ए होल ग्राम पंचायत कौन कौन फंक्शंस रही आम डिस्कशन करवा ग्राम पंचायत फंक्शंस कौन रही आदि तांकर जो रोल फंक्शन रही से आम जापर जे आज ए होल तांकर कौन रोल रही है।